This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Fourth block, reliability theory, and in that unit we have studied the definition of reliability and different components or different terms of reliability as failure probability distribution, reliability function, hazard rate, mean time to system failure, and failure density function. Okay, now in yesterday we have find the reliability of a component by two methods. First of all, first method is that the probability failure density function is given, and we have to calculate the reliability. Second one is that we have the data of the failure of the components of similar component, and on the basis of the data we estimate the different components of the component of the reliability as reliability function, cumulative failure density function, probability density function, and hazard rate. Now we come on the reliability evaluation of simple system. If Sir, I have one question. yes, Shweta, batao. Sir, in chapter, sir, sorry to interrupt. Sir, in chapter 13, 13.3 figure, if you can open. Which chapter? Figure number 30, 13th chapter. Okay, just a minute. I will open that one and अच्छा जो उसको हो गया हाँ तो और क्या yes, figure number 13.3. 13.3. Yes. This figure shows that the joint of capital FT and RT. Okay. सर ये Yes. R पहले और S बाद में नहीं होना चाहिए. रिलायबिलिटी पहले 0 टाइम से शुरू होकर के और फेलियर बाद में. नहीं. It is the probability up to time t, and it is the probability up to time t to infinite. Okay, sir. It is 0 to t and it is t to infinite. Okay. Right, sir. Any other? That's it, sir. Okay. Okay. Now today we will start unit number 14, reliability evaluation of simple systems. As you know that a system may contain different components, and we have to find and these components may be joined with the different configuration as series, parallel, mixed. So at the time, how we can find the reliability of the whole system? Okay, so series, you know the series and parallel system. आपने पढ़ा है कहीं पे सीरीज सिस्टम क्या होता है और पैरेलल क्या होता है? यस सर. No, sir. नहीं, चलो कोई नहीं. तो चलिए इसको धीरे धीरे करते हैं फिर, क्योंकि शायद आप फिजिक्स में शायद just a minute.
Okay, now start. Yes. So in this unit, we have studied how to calculate the reliability of a series configuration, parallel configuration, and in the next unit, we will study the mixed configuration, K out of N, standby or complex configuration. Okay. Now, definition of a system. ये बहुत easy है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत easy है ये, पूरा ही चैप्टर easy हो जा रहा है, दोनों और तीनों units. For defining simple system involves the concept of series and parallel configuration. To understand it better, it should be the series configuration क्या है पहले. देखिए जब आपने जब अब तो खैर थोड़ा चेंज हो गया है, चाइनीज दीपावली पे जो हम डेकोरेशन करते हैं आजकल तो चाइनीज झालर आती हैं, पर जब हम बहुत छोटे थे तब इंडियन आती थी. तो उसमें क्या होता था, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ बना के. एक ऐसे वायर होता था, फिर एक बल्ब लगा होता था यहाँ पे, फिर वायर, फिर बल्ब लगा होता था, फिर ऐसे. तो इस टाइप की झालर होती. तो अगर एक भी बल्ब इसमें से फ्यूज हो जाता था, कोई भी बल्ब, तो ये पूरा बंद हो जाता था. तो इट इज अ सीरीज कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे जो ये बल्ब्स लगे हुए हैं, दीज आर इन द सीरीज, ये एक के बाद सीरीज में जुड़े हुए हैं. एक सिस्टम तो होता है सीरीज सिस्टम, दूसरा होता है पैरेलल सिस्टम. ये इस तरह से एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, और एक बल्ब मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है. तो बाय द वे इस सिस्टम में क्या है, सीरीज पैरेलल सिस्टम में इट इज कॉल्ड द पैरेलल सिस्टम. अगर ये बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तब भी करंट क्या है, ये बल्ब हमारा जलता रहेगा. ठीक है, ये बल्ब जलता रहेगा. तो इट इज द पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज द सीरीज कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम बात करें कि किस सिस्टम को हम सीरीज कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे और किस सिस्टम को हम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो सिमिलर वे में हम वही डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं. A system is said to be series configuration if they have connected in such a way for the successful operation of all the system all and component must perform their intent function. मतलब इस सीरीज सिस्टम में क्या है कि सारे कंपोनेंट क्या हैं, वो हमारे ऑपरेटिंग अपने सभी, अगर सभी वर्किंग होगा तभी हमारा यहाँ से करंट चलेगा और वो यहाँ तक इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएंगे हम. अगर यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई तो हमारा ये बंद हो जाएगा. जैसे हम कोरोना में भी कहते हैं, कोरोना वायरस के लिए क्या कह रहे हैं कि चेन ब्रेक कर दो, तो हमारा कोरोना क्या है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो यानी हम सीरीज की बात कर रहे हैं और सीरीज में से हम ये वाला कंपोनेंट बीच में से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या है, फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम ऑल कंपोनेंट मस्ट परफॉर्म देयर इंटेंट फंक्शन. सभी कंपोनेंट, ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा, यानी यहाँ से इनपुट से आउटपुट कब तक मिलेगा, जब हमारे सभी कंपोनेंट क्या है, वर्किंग रहेंगे. ओनली वन नीड टू फेल फॉर द सिस्टम फेलियर. अगर एक भी इसमें से फेल हो गया तो हमारा सिस्टम क्या है, पूरा पूरा फेल हो जाएगा, यहाँ से इनपुट से आउटपुट पे हम नहीं जा पाएंगे. तो द स्ट्रिंग of lights जो मैं एग्जांपल दे रहा था, bulbs or LED used in the festival and weddings is a good example of the series system. The system performs successfully only when all bulbs are working and only one of them needs to fail for the system failure. जो आजकल आ रही है चाइनीज, उसमें क्या है, सीरीज में तो है वहां पे, पर उसमें क्या करते हैं, दो एक सीरीज ये बना देते हैं और एक सीरीज और बना देते हैं बल्ब्स की. तो अगर बाय द वे यानी दो पैरेलल में लगा देते हैं, अगर इसमें से कोई बल्ब फेल हो गया तो ये हाफ बंद हो जाएगी, हाफ हमारी चलती रहेगी. ठीक है, तो इसमें इट इज ए मिक्स्ड, सीरीज भी है और पैरेलल भी है. ये भी हम रीड करेंगे आगे. अब हम लेते हैं पैरेलल वाला. जस्ट तो सीरीज में हम ऐसे कनेक्ट करेंगे 1 2 3 अप टू n तक. ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है करंट का जो भी है, एंड देन आउटपुट. और हम इसको रिलायबिलिटी लिटरेचर लॉजिकल कनेक्टिविटी ऑफ n कंपोनेंट नेमली 1 2 3 इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो इलस्ट्रेटेड बाय द रिलायबिलिटी ग्राफ. हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. दिस इज द कंपोनेंट. यहाँ पे तो कंपोनेंट बड़े दिखाए हमने, यहाँ छोटे हैं, पर जनरली हम ये वाला फिगर यूज करेंगे अपने मटेरियल में. हमने ये फिगर यूज किया था. ओके, अब पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं. तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये ऐसे हमारा एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज करते हैं, एक यहाँ पे है कंपोनेंट और एक कंपोनेंट यहाँ पे है.
तो बाय द वे इसमें से अगर एक ये वाला फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, तब भी हमारा क्या होगा, सिस्टम वर्क करेगा। जब तक एक भी कंपोनेंट हमारे पास सर्वाइवल होगा तो हमारा सिस्टम क्या है, वर्क करेगा। है, और अगर इसे पूरे को फेलियर करना है तो सारे हमारे जो है ये भी तीनों फेल होंगे, जब जाके हमारा ये सिस्टम पूरा फेल होगा। तो क्या कंडीशन है इसमें कि ओनली वन कंपोनेंट नीड टू वर्क फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। सेकेंड, ऑल कंपोनेंट मस्ट फेल फॉर सिस्टम फेलियर। सारे के सारे कंपोनेंट फेल होंगे तभी हमारा सिस्टम क्या है, वो फेल होगा। चलिए, तो दोनों हो गए। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इनपुट, और हमने यहाँ पे एक वन कंपोनेंट यहाँ पे, सेकंड थर्ड इस तरह से एन कंपोनेंट। तो अगर वन फेल हो जाता है तब भी हमारा वर्किंग चलता रहेगा, क्योंकि टू से अब तक एन तक हमारे पास है। अगर ये सब भी फेल हो जाए और एक कंपोनेंट बचे तब भी हमारा ये वर्किंग करता रहेगा। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये इनपुट या आउटपुट, ऐसे हमारे कंपोनेंट्स क्या है, करंट जा रहा है। पर इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला ही डायग्राम पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करेंगे। Simple system. A system is said to be simple if either its components are connected in parallel, या तो उस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो पैरेलल में हो, या इन सीरीज और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब या तो उसके सभी कंपोनेंट्स पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हो, या सीरीज में हो, या उनके कॉम्बिनेशन। कुछ कंपोनेंट्स आर इन कनेक्टेड इन सीरीज और कुछ कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन parallel configuration. In other words, a system is said to be simple if reliability block diagram can be reduced into subsystem having independent component connected either in parallel or in series system. अभी ये किस तरह से हम पूरे सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे, जस्ट आगे स्टडी करेंगे हम लोग। रिलायबिलिटी इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकलेगी? A system is to be a system is an assemble of say an identifiable component that perform same function. जो फंक्शन होगा उनका वो सबका सेम रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास अलग अलग तरह के कंपोनेंट है, उनकी फंक्शन भी अलग अलग है, उनकी फंक्शन क्या होगी, एक जैसी होगी। द एन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर नोन एज द एलिमेंट्री कंपोनेंट। जो हमारा सिस्टम है, मान लेते सिस्टम बनाते हैं हम, ये जो हमारी ये हमारी सीरीज थी, तो ये भी सिस्टम बन गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक इनपुट। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, उनका फंक्शन सेम है, और इनको बोलेंगे हम एलिमेंट्री कंपोनेंट। दीज आर द एलिमेंट्री कंपोनेंट। तो फॉर फाइंडिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम वी यूज द प्रोबेबिलिटी। क्योंकि रिलायबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एज एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले मैं उनको आपको आइडिया दे दूं कि क्या था हमारा एडिशन थ्योरम क्या थी, और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर इसको एग्जांपल से लेते हैं। यस, चलिए इसी को लेते हैं पहले। कि ये था कि इफ ए एंड बी टू इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है कि ए भी इवेंट हैपन करे एंड बी भी इवेंट हैपन करे। मैंने बताया था जब, शायद आप लोग तो मुझसे नहीं पढ़े प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारे पास एंड वाला आ रहा हो तो हम वहां पे इंटरसेक्शन यूज करते हैं। हमने क्या कहा कि इवेंट ए भी हैपन हो एंड इवेंट बी भी हैपन हो, तो देन वी यूज द इंटरसेक्शन, ओके, symbol. So and the probability of A intersection B is represented as probability of A plus, sorry, into probability of B if the events are independent. Okay, ये this is called the multiplicative rule, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव रूल। और एक होता है प्रोबेबिलिटी कि इधर ए वर्क करे और बी वर्क करे, देन वी यूज द यूनियन साइन। यूनियन ये तो किसके लिए होता है, एंड के लिए, और ये होता है और के लिए, जब और बन रहा हो, या तो ए वर्क करे या बी वर्क करे, या तो ए इवेंट हैपन हो या बी इवेंट हैपन हो, तब हम यूज करेंगे ए यूनियन बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। And if the units are independent,
अगर हमारी इवेंट्स या यूनिट इंडिपेंडेंट हो तो ये हमारा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट 0 के बराबर हो जाता है। अगर ये इंडिपेंडेंट तो उस टाइम पे जब प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनिट बी की, दैट बिकम दिस। ठीक है। थर्ड बचता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी is called the conditional probability, and it can be written as probability of A intersection B over probability of B। जो गिवन होगा वो नीचे आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी जब हम मल्टीप्लिकेटिव यूज ये मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ते हैं तो अगर बाय द वे A एंड B डिपेंडेंट यूनिट हो तो B के साथ हमारा क्या आएगा, गिवन A आता है। ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो, अब इनको कैसे यूज करना है रिलायबिलिटी में वो देखते हैं। ठीक है। तो तुम दोनों समझ आ गए कि ए एंड बी की बात हो तो ए इंटू बी हो जाएगा, अगर और की बात हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और दो चीजें मुझे और जरूरत पड़ेंगी। एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। ए बार मतलब दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और एक आपने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी यस, अगर यहाँ पे बार हो तो वो इक्वल टू रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पूरे के ऊपर होल बार बन जाएगा। ठीक है। इसका अपोजिट भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर ऐसे है, इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, तो दिस इज बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन बन जाता है बी और होल के ऊपर बार। यहाँ पे जो यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और पूरे पे बार बन जाता है, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो फिर यूनियन में कन्वर्ट। तो ये भी हम ये 5 रूल्स हम यूज करेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे यूज होगा तो ये हम बात करेंगे इसकी। ये है हमारा सिस्टम, इट इज कॉल्ड द सिंपल सिस्टम पर मिक्स है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे कनेक्शन है, ये पैरेलल है कि सीरीज में? सीरीज में। और 4 5 सीरीज है ना, तो 4 5 सीरीज में है। और अगर मैं 1 और 2 की बात करूं केवल, तो 1 और 2 इसमें भी ये जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो दीज आर द इन पैरेलल। तो यहाँ पे सीरीज भी है तो पैरेलल भी है, तो दीज आर कॉल्ड द मिक्स सिस्टम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे या रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे ये तो पहले हम ले रहे हैं सिंपल सिस्टम की रिलायबिलिटी। ये सिस्टम यानी अगर सीरीज है तो उसकी रिलायबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, और अगर पैरेलल है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ द पैरेलल सिस्टम। चलिए तो कुछ हम इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो देखिए पहले सीरीज के लिए, सीरीज सिस्टम कब बोलते हैं सीरीज सिस्टम को, वो क्या है फॉर द, अब पहले तो रिलायबिलिटी पे देखते हैं क्या है। रिलायबिलिटी है कि द सिस्टम शुड परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शन सक्सेसफुली, कि अगर हमारा फंक्शन या कंपोनेंट हमारा अगर उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर चल रही है, इंटेंडेड फंक्शन वो कर रहा है, तो हमारा सिस्टम कहलाता है रिलायबल सिस्टम कहलाता है। एंड तो अब यहाँ पे हमें पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है। तो ये सिस्टम कब तक काम करेगा, जब हमारा ए भी काम करे और या एंड बी भी काम करे, सी 3 भी काम करे, एन भी काम करे। तो इनके बीच में हम और लगाएं कि एंड लगाएं, बताइए। एंड लगेगा, क्योंकि क्या कंडीशन है कि ऑल द कंपोनेंट शुड परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शन, कि सभी कंपोनेंट क्या है वो इंटेंडेड फंक्शन करेंगे। यानी ए भी करेगा, ए एंड बी, नहीं 1 एंड 2 एंड 3 एंड एन। तो रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी द प्रोबेबिलिटी। तो हम अगर पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालते हैं तो रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी ऑफ
रिलायबिलिटी को हम ऐसे इंडिकेट कर रहे थे, यहाँ पे एस भी लगा सकते हैं सिस्टम की। तो क्या होगा, इट इज द प्रोबेबिलिटी क्या कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है, मान लेते हैं वो E1 से इंडिकेट कर रहे हैं, वो भी हमारा वर्किंग करे, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, E2 भी हमारा वर्किंग करे, एंड का मतलब फिर इंटरसेक्शन, E3 भी हमारा वर्किंग करे, एंड सो ऑन, EN भी हमारा वर्किंग करे। ओके, तब हमारा सिस्टम क्या है, तो सिस्टम की लायबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड E1, E2, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन एंड EN। तो इंटरसेक्शन पता है कि अगर इंटरसेक्शन हो तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देन वी कैन दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2। अगर इंडिपेंडेंट है तब तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख सकते हैं, पर अगर E2 डिपेंड कर रहा है E1 पे तो हमें फिर कंडीशनल फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी E3 का क्या होगा कि E3 गिवन E1 एंड E2। पर जनरली जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, जो सीरीज या पैरेलल या कैसे भी होते हैं, जनरली ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो देन वी कैन राइट एज दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ EN। अब ये E1 E2 EN क्या है, अगर ये पता चल जाए तो हमारी लायबिलिटी आ जाएगी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लेट E1 be the event that the component I perform its intended function। E1 मान लिया इवेंट है कि वो हमारा परफॉर्मिंग कर रहा है, अपनी फंक्शन को परफॉर्मिंग कर रहा है। तो इट मींस क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी के बराबर होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, इट इज द रिलायबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इट इज R1T। R1T ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि रिलायबिलिटी क्या था, रिलायबिलिटी था कि प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अपनी फंक्शनिंग करता रहे विदाउट फेलियर। तो दिस इज R। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वो था फॉर्मूला कि सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, वो हो जाएगी पैरेलल के केस में R1T इंटू R2T इंटू R3T इंटू RNT, यानी कुल मिला के जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो दिस वन ये मैंने बताया उसी तरह से लिख लिया हमने कि ये भी परफॉर्म, सभी को परफॉर्म कराना होगा। तो उसके बाद ये उसको हमने, क्योंकि नॉट, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ EN। तो दिस कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज द रिलायबिलिटी, तो इसको रिलायबिलिटी टर्म्स में लिख लिया। तो कुल मिला के क्या हो गया, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम हो गया R1 इंटू R2 R3 RN। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Evaluate the reliability of the series system having the reliability block diagram 14.7 for a mission of 500 hours, where the given reliability of the component are for a mission of 500 hours. Assuming that the failure of any component does not affect the functioning of the other component, यानी components क्या है हमारे, वो independent है। तो पहले देखना होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो अगर हम देखें ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बन रहा है, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, और वी नो दैट इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन the reliability of system is equal to the product of the reliability of the components। तो हम इनकी क्या करें, इसकी reliability this into this into this into this, यानी इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के कितना आ गया रिलायबिलिटी 0.34। तो इससे क्या ऑब्जर्व निकल रहा है, देखिए रिलायबिलिटी फर्स्ट कंपोनेंट की 0.60, सेकंड की 0.7, 0.95 और 0.80, ये तो कंपोनेंट्स की थी। पर रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम की क्या हुआ, और भी कम हो गई, 0.342 हो गई। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि we have to multiply the quantity less than 1। क्योंकि रिलायबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1 मैक्सिमम तक होती है, और अगर हम 1 से छोटी क्वांटिटीज के आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो वो क्वांटिटी और भी छोटी होती जाएगी। यानी जैसे जैसे हमारे सीरीज में कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे
रिलायबिलिटी और भी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये लिखा होगा, नोट दैट द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल डज इट मेक्स यू वंडर व्हाई द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द वर्स्ट कंपोनेंट। जो सबसे कमजोर कंपोनेंट था, सबसे कमजोर कंपोनेंट क्या होगा, जिसकी रिलायबिलिटी सबसे कम थी, रिलायबिलिटी फर्स्ट कंपोनेंट की सबसे कम थी, उससे भी कम रिलायबिलिटी आएगी हमारे सिस्टम की। दिस प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द सीरीज सिस्टम। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम इज दैट रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम कैन नेवर बी बेटर देन द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्स्ट कंपोनेंट। यानी अगर हमारे कंपोनेंट सीरीज सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी जो उससे सबसे वर्स्ट कंपोनेंट है उससे भी उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। द सेकंड मेजर लिमिटेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज एज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम इंक्रीज। जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ेंगे ऐसे ऐसे रिलायबिलिटी हमारी क्या है और भी कम होती है। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंपोनेंट सेकंड पे आते हैं एग्जांपल पे। A system has 3 components connected in series having reliability this for emission of 400 hours. What is the percentage increase in the reliability system in each of the following cases? ये reliability कितना बढ़ जाएगी। अब कुल मिला के हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम अगर हमारे सिस्टम हमारा जो सिस्टम है उसमें जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं वो हमारे सीरीज सिस्टम में है, तो हाउ कैन वी इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कैसे इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसी क्वेश्चन के लिए क्या है कि क्योंकि जो हमारी इस सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि देखिए अगर मैं सिस्टम को लगाऊं, इस सिस्टम को ऑपरेटिंग करूं तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कोई बताएगा सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट फ्यूज होगा या खराब होगा। फर्स्ट कंपोनेंट सबसे जल्दी जा सकता है ना, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी सबसे कम है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट कंपोनेंट गया हमारा सिस्टम बंद हो जाए। तो इसको हमें रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें, जो सबसे वीकेस्ट हमारा कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी को हम इंक्रीज करें, तो हमारे क्या हो सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको 8 कर दें तो हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, फिर वो 0.7 के आसपास, मतलब उससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 0.75 पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करिए इस एग्जांपल में कि ये तो हमारा सिस्टम था जिसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए थे। पहले इस सिस्टम की रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं, तो इस सिस्टम की रिलायबिलिटी आ गई 0.224 क्योंकि सीरीज में था तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर क्या है रिलायबिलिटी ऑफ, अब कह रहा है कि रिलायबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इंक्रीज 0.1। कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी को 0.1 इंक्रीज कर दें तो यानी फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी होगी इस बार 0.5।